Joining us right now, Adi, what the police's version is that what is being projected by the political leaders there in Samajwadi Party is actually not the truth. Very specifically, see, Amita, this is what the Muzaffarnagar SSP has to say. He's saying that the action which SHO took, he had a baton and a pistol in his hand, was just to control the riots and people, a mob, an unruly mob who was trying to charge towards the cops. So they were just trying to control the mob, and they saying that the video is edited and it's not a complete video which has been shared by some political leaders. That this is what the police has to say on the SHO who was hurling his service weapon at some people. But the Election Commission has also taken cognizance of the video and they are investigating the video. They are taking statements from the police also. Senior police officers have been asked to check on the video whether it is true or not. The present the facts that have been shared by Akhilesh Yadav is true or not. So these are the action that has been taken after the video. In fact, Akhilesh Yadav last night he also posted a post on his social media account in which he's counter-attacking Muzaffarnagar SSP and saying that Muzaffarnagar SSP is telling lies. So this is what how Akhilesh Yadav is alleging that the Uttar Pradesh police was misusing their power in the crucial by force, especially on the Mirapur constituency in Muzaffarnagar. Right, but Adib, who would investigate as far as finding out the truth in those pictures, in those videos that have been posted by Akhilesh Yadav? Congress party also seems to be seconding it. However, the police is refuting those allegations. I will see, Amita, the Election Commission will ask the district magistrate officer, as he is also the senior observer for the Election Commission. And based on the report of the district magistrate, the Election Commission will take action. If the district magistrate finds that there is any kind of violation by any police, then he will submit a report to the Election Commission. But as of now, the police has given the clean sheet, is saying that the inspector, the particular SHO, he was trying to control the unruly mob that were charging towards them. So this is what the most. All right, Adi, please do continue to be with us. मनोज यादव हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं. मनोज जी, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को लेकर? अखिलेश यादव जी ने तो पोस्ट करा है, लेकिन पुलिस कह रही है कि ये सच्चाई नहीं है. पुलिस वहां पे जो झड़प हुई थी उसे सुलझाने की कोशिश कर रही थी, ना कि जो स्थिति है उसको बिगाड़ने की. देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस का चरित्र कुछ भी नहीं बचा है. कल खुली आंखों से पूरे देश ने देखा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस किस कदर, किस नशे में, किस नफरत के साथ काम करती नजर. किसी का आईडी कार्ड छीन रही थी, किसी के साथ जाति कर रही थी, माँ बहनों पे माँ की गालियां दे रही थी, पिस्टल ताने हुए पागल कोई दारोगा इंस्पेक्टर अपनी माँ बहनों को डरा रहा था. सब कुछ तो देख लिया. तो इस पुलिस का किस बयान पे आप विश्वास कर लेंगे, या हम किस बात पे विश्वास कर लें? उत्तर प्रदेश की पुलिस पूर्ण रूप से बायस्ड है. पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ अमिताभ यश के इशारे पे गुलामी करती नजर आ रही. आईपीसी की लेकिन एसएसपी वहां पे बयान दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि वहां पे जो झड़प हुई थी उसे नियंत्रण में लाने की कोशिश करी जा रही थी वहां की पुलिस, और जो सच्चाई जो है वो आखिरकार कंप्लीटली डिफरेंट है जो वीडियोस जिस तरह से पोस्ट करी जा रही है. मनोज जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप बने रहिए हमारे साथ. अनिला सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए, दिनेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए. दिनेश जी, सबसे पहले जो आरोप ये लगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश की पुलिस पर कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी पुलिस की तरफ से, धमकाने की कोशिश की जा रही थी, रिवॉल्वर बाहर निकले हुए थे ताकि बाहर लोग आकर वोट ना दे. देखिए, जो हारने वाला होता है वो नए नए बहाने को लेकर आता है. इन सबको पता था कि ये सब जो सपना देख रहे थे कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का, पुलिस के जो चुस्ती है, पुलिस की जो सतर्कता थी, उसने किसी भी अप्रिय घटना को घटने नहीं दिया बगैर किसी भेदभाव के. और जहां तक जिस घटना का वो जिक्र कर रहे हैं, पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और समाज के अन्य लोगों ने लिखकर पुलिस को दिया था कि इस क्षेत्र में यह हिंसा ये लोग व्याप्त कर सकते हैं, और पुलिस ने उचित सतर्कता व्यवस्था रखा, जिसके परिणाम स्वरूप शांतिपूर्वक मतदान होने में सहायता मिली. अब इस प्रकार के आरोप लगाकर अपनी गलती को ठीक करने का प्रयत्न जो विपक्षी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है. तो वो देखें कि अब हिंसा के द्वारा चुनाव नहीं हो सकते. अब जनता जनार्दन के दरबार में जो आपने काम किया है उसी के आधार पर आपका आकलन होगा.
मनोज जी, आप जवाब देना चाहेंगे? अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती तब भी उनके ऊपर आरोप लगाया जाता? मैं बड़ी विनम्रता के साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या अगर जिस तरह माँ बहनों को गालियां दी गई, जिस तरह उनको पिस्टल तानी गई, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती और पुलिस यही बीजेपी के महिलाओं वोटरों के साथ कर रही होती तो इनको कैसा प्रतीत होता? थोड़ा सा मुझे बताने का काम करें। उन महिलाओं के हाथ में लाठी डंडे तो थे नहीं, उन महिलाओं के हाथ में वोटर कार्ड, आधार कार्ड और उनकी पर्ची थी। किस आधार पे उन्होंने इस तरह की काम किए? तो ये कम से कम इस तरह बात नहीं की। आपकी पुलिस सफल रही। अमिताभ, यश और योगी आदित्यनाथ के जो कुचक्र जो रचा था उसमें सफल नहीं, वोट परसेंट कम पड़ा। आप प्रयास में खुशी आप मना सकते हैं कि हो सकता है आपको चुनाव उन सीटों पर जीतने मिल जाए जहां आज तक आप नहीं जीते। ठीक उसी तरह जैसे रामपुर की सदर सीट पे आपने चुनाव जीता था नंगा नाच करके। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, बेशर्मी की चादर इतनी मत ओढ़िए कि जब आपको बेआबरू किया जाए तो पता चले कि आप ही सबसे बड़े उसमें उस अवस्था। दिनेश जी, ये आरोप तो समाजवादी पार्टी पहले से ही लगा रही है। जहां तक अगर वोटर आईडी कार्ड चेक करने का भी जो आरोप है वो कह रही है कि पुलिस करती है और धमकाती है लोगों को ताकि वो आकर वोट ना दे। देखिए, पहली बात तो आपने मुझे मेरे मंतव्य पे टिप्पणी करने के लिए कहा था, किसी परिचर्चा में भाग लेने के लिए नहीं कहा था। फिर भी मैं किसी के विषय पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि अगर हिंसा होती तो यही सब आरोप लगाते कि पुलिस चुस्त दुरुस्त नहीं थी। अच्छा, पुलिस के बाद पास में कौन सा ऐसा चश्मा है जिससे वो देखकर जान जाए कि ये भाजपा का वोटर है, ये सपा का वोटर है, ये किसी और दल का वोटर है? ऐसा कोई चश्मा उसके पास में नहीं होता। जो हुड़दंग मचाने की कोशिश करता है, पुलिस उसके साथ में कानूनन जो उनके पास में हथियार होता है बगैर बल प्रयोग किए उस विधि का वो अपनाते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं, जिससे अब इसमें मैं परिचर्चा में भाग नहीं लूंगा। ठीक है दिनेश जी, आपको मैंने केवल अपना मंतव्य बताया। ठीक है दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। अनिला जी भी हमारे साथ जुड़ गई है बीजेपी की तरफ से। अनिला जी, वुड यू वांट टू काउंटर एज फार एज व्हाट मनोज यादव हैज बीन सेइंग ऑन पार्ट ऑफ द समाजवादी पार्टी? My Ram Ram to all, and my leader, Mr. Dinesh Sharma ji, he has said everything in a very clear and crystal way. And those who want to understand, they can understand, and those who do not want to understand, then they definitely are playing the game of vote bank. I just have to say one thing: what is the work of the police or the administration? It is to control law and order situation. If they see that yes, some happening can happen, then definitely they take action. Who says that if women are there, they can't play any dirty games? So the Samajwadi Party sponsors, they want to derail the peace and harmony of the state. If they want to make a platform or a reel just before the results that because of the so and so problems we were not able to win the seat. This is not like that. The thing is, Bharatiya Janata Party or the NDA, we are going to win majority of seats in bipolar elections. So Samajwadi Party has already staged their actions and their claiming. तो एक आखिरी कमेंट मनोज जी से भी ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि मनोज जी आपने सुना, जहां तक अगर बीजेपी के लीडर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर पुलिस अपना काम करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। अगर आप कैसे बता सकते हैं कि ये जितने जो सपोर्टर्स आ रहे थे, क्या वो भाजपा सपोर्टर्स थे या समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालने वाले थे, जहां तक अगर वहां के लोगों की बात की जाए? एक चैनल का मैं नाम नहीं लूंगा, उस चैनल के रिपोर्टर ने लाइव वोट डलवाने का प्रयास किया जिन लोगों को वहां का प्रशासन वोट डालने नहीं दे रहा था। प्रशासन से मतलब मेरा पुलिस से उनकी आईडी को इनवैलिड बताते हुए उनको भगा दे रहा था। उस चैनल का व्यक्ति जब उन वोटर्स को लेकर जा रहा था तो दो गुंडे आए, वो सब कैमरे में कैद है। दो गुंडे आए और उन्होंने कैमरामैन और रिपोर्टर को धक्का देके गेट के बाहर कर दिया, कहा कि आप यहाँ दंगा भड़काना चाहते हैं। सोचो, एक रिपोर्टर जो वोटर का वोट नहीं पड़ रहा है उसको ही दंगा वाला बना दिया। कितना प्रतिष्ठित चैनल है, और उसके बावजूद डीएम को रुकना पड़ा, सारी बातें कहनी पड़ी। क्या उन दो गुंडों के खिलाफ बीजेपी ने कोई कार्रवाई की? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कार्रवाई की? या वहां के मौजूदा जो इंस्पेक्टर खड़ा था उसने कोई कार्रवाई की थी? उनका तेवर देखा था, उनका रवैया देखा था? अब घटनाओं के बारे में बात करेंगे मनोज जी, तो फिर सामने तो एक और घटना भी आई थी, जहां तक अगर एक लड़की
एक पीड़ित जहां पे महिला जिसको बताया जा रहा था बीजेपी की तरफ से रखा जा रहा है पक्ष के क्योंकि वो वोट करना चाहती थी और उसने मना कर दिया समाजवादी पार्टी को वोट देने से, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। अभी वो भी बात है जो काफी चर्चा में। एक बार उदित राज जी से भी हम जोड़ लेते हैं। उदित राज ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज ऑल्सो विद अस राइट नाउ। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस वीडियो सर दैट हैज बीन हाइलाइटेड ऑल्सो बाय अखिलेश यादव? व्हाट हैपेंड इन मुजफ्फरनगर? द पुलिस हैज बीन रिफ्यूटिंग द क्लेम्स saying that the police was only doing its job to control the situation. Not at all. I've seen that video. I could see that the police is acting in partisan manner, and police is assisting those who are preventing to vote for a particular party. And that cameraman was also pushed away. And DM role is also not very satisfactory. He did not act there. He said that the people are voting, there's nothing wrong in it. And the journalist tried to say that what happened and what is happening over there. And inside, the people who were unwarranted people, they were there. Not only that thing, the act of the police, I could see that is unbecoming, and no action was taken by DM at that time. And that journalist became very helpless. So now it comes under the purview of the Election Commission if it issues any directions as far as all of these issues that have now been highlighted on part of the Samajwadi Party, would it be taken up by the poll body? Thank you very much, Anila ji, Manoj Yadav ji और उदित राज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। Well, this remains